हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर आपको बता दें कि आज से आपको बता दें कि बजट सत्र के जो दूसरा चरण है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज उसका पहला दिन है और दोनों ही सदनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लोकसभा की, दूसरी राज्यसभा की। Speaker sir, today is 10th March. 20 more days are within March. The last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegations against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are devouring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote a date on 15th March. 15th March, they have sent a MOU. Why is that account? Let them tell. Why is that account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi is here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. He's the education minister. Their education minister came to us. They are dishonest. This is unfortunate. It is unfortunate in democracy. They are trying to cover up their failure. They are trying to do politics. This is unfortunate, sir. Question number 142. Dr. Nalin Soren. Okay. Dr. Nalin Soren. Question number Nalin Soren. और क्वेश्चन माननीय संस्कृति मंत्री से पूछना। Honorable Speaker, sir, I would like to know from the Honorable Minister of Culture and Tourism that there are a lot of Honorable member, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण को लेकर के ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सुनिए। सदन के संज्ञान में लाने के लिए रखा है।
आपके माननीय सदस्य को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ इसे करके मंत्री जी से नीचे सदन पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है, ये गलत संसद की मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए। आप इस तरीके का, ये आपका तरीका रवैया उचित नहीं है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर, प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के देश की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न और आपने जो तरीका रखा है ना, वो तरीका अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर्वे करके ठीक नहीं है ये। जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का उपक्रम है, आजादी के पहले से 1871 में जब इसकी स्थापना हुई, उससे तब से लेकर के अब तक निरंतर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशंस के लिए निरंतर काम करता है। अभी देश में 3698 से इतनी साइट्स हैं जो ASI के अंतर्गत आती है और ASI लगातार ऐसी सारी ऐतिहासिक मूल्य की धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 3698 धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ में ऐसे संभावित स्थान जहां हमारे ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक महत्व के स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, जिससे हमारे ऐतिहासिक विरासत और उसकी कंटिन्यूटी पर और अधिक प्रामाणिक रूप से बात की जा सके। ऐसे एक्सकेवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस निरंतर करता है। इसके साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का सर्वे करना, एपिग्राफिक रिसर्च करना, आर्कियोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान करना, ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स पे म्यूजियम्स की स्थापना करना और उनके साथ साथ में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साइट्स को इंक्लूड कराने के लिए डॉसियर्स बना करके ऐसी साइट्स को बनाने के लिए, एनलिस्ट कराने के लिए, उनको एनक्रिप्ट कराने के लिए सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, इन सब विषयों पर निरंतर काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, निरंतर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि और बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त वो एडॉप्ट हेरिटेज इस नीति के तहत भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हमारे ऐसे सारे ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार काम करती है। और इसके साथ साथ में राज्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ पर जो चिन्हित धरोहरें हैं, जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की लिस्ट में आती हैं, उन सब के संरक्षण के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं। महोदय, झारखंड राज्य के दुमका जिला मलूटी गांव में स्थित मलूटी मंदिर तालकोटा से 108 मंदिर बना हुआ है और उसका अभी 72 मंदिर शेष रह गया। क्या इस पर सरकार विचार रखती है उसको संरक्षण के लिए? माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो दुमका जिले के मंदिरों की चर्चा की है, झारखंड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 13 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके संरक्षण के लिए काम कर रही है। दुमका के मंदिरों के लिए किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं। क्वेश्चन नंबर 143, डॉक्टर राजेश मिश्रा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सीधी में 10वीं शताब्दी में निर्मित चंद्रेय शिव मंदिर है, जिसका निर्माण चेद वंश के राजा प्रबोध ने कराया था। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है।
मंदिर का निर्माण बालुआ पत्थर से हुआ था, गर्भगृह गोलाकार है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य तथा सुंदर पहाड़ियां हैं। इस स्थान को विकसित करने की क्या योजना है? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? और मेरे ही जिले में बीरबल की जन्मस्थली तथा साधन स्थली घोघरा स्थान में है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल कर विकसित कर